Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. Right, I have been taking UGC Net Paper 1 for a while, and if you know that there are so many important things that I have been covering for a while, and we have started a new series wherein which we are covering 20 previous year questions in our particular video. So these videos are very important and relevant for your examination. Okay. So we'll start with this video, and as you know, this unit 4 is titled Communication. So in this video, we'll talk about the 20 previous year questions which have been asked in your examination from this unit 4, Communication. Okay, so I'll talk about the relevance of this unit. As you know that at least 5 questions are being asked from this unit in every each and every paper. So what this makes this unit a very important unit, and that is why you have to prepare it well, right? So there are no ways that you can ignore this unit. And second important thing that I want to tell you, that this is a very fairly easy unit that you have to prepare, right? There is not much complication. So, as I know that there are two types of viewers who have, one is kind of who have studied. Second, they want to study from the basic, right? They want to study various topics from the basic or the scratch. So what they can do is go to Talent Blazer YouTube channel. You can find a playlist under my name, and definitely from there you can learn from Unit 4. And towards the end of the video, I'll talk about and share you a tip from where you can learn communication unit from scratch. So you have to make sure that you stick till the end. Okay. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। सो विल टेक एटलीस्ट 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया जाएगा, और इसमें मैं चाहता हूँ आप बहुत पार्टिसिपेट करो इस पूरे एंटायर इस वीडियो के दौरान। पहली बात तो ये है, आई डोंट वांट यू टू बी अ पैसिव लिसनर। देखो पहले होता क्या है, इफ़ यू आर अ पैसिव लिसनर देन यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर जस्ट taking what is being told by the teacher. So I want you to be active participant, and how you can be active participant is, I'll show you the question. I'll give you some time to attempt, and then you have to mention your score in the comment box. So towards the end of the video, you have to mention your score in the comment box so that I can know how much have prepared, and you will also know that how much effort that I have to put in this particular unit. Okay, so you have to play a part in this. So I want constant effort from your end as well. Okay, so we'll start with the first question. Question number one. This question talks about the Gandhian method of communication. This came in December 2019 of your examination, right? So there are four options. You have to pick the right one. The Gandhian method of communication is known as massive, mass line, non-technical, technological, personal, right? So I'll give you some time. Think about it and pick the right answer. Pick the right answer according to you. If you don't know it, okay? Okay, so time's up, right? I think I have given you enough time to attempt the question. So, firstly, you have to read the question well, then you can decipher the answer. Gandhian method of communication के बारे में बात करें तो right, we are talking about Gandhi ji, what he was a like father figure of the nation. He was a political leader as well, as we know, right? So he was a political leader. He used to convey message to the masses, or actually get the opinion of the masses, right? So while we were under Britisher rules, they used to come up with the new rules and regulation, and the general public had to suffer a lot. So what Gandhi ji used to do, you know, basically go to the public and ask their opinions about how their days has been, how much they have suffered, do they like this new rules and regulation. So their opinion was being asked, and this is a Gandhian method of communication where you're communicating to a mass people, and this is also called bottom down approach, like quite similar to it. बॉटम डाउन अप्रोच को अगर हम बोल सकते हैं, उसकी जैसे ही काफ़ी सिमिलर अप्रोच है ये। तो इसमें होता क्या है देखो,
थिंग इज कि गांधी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में गांधी जी काफ़ी लोअर लेवल ऑफ लोगों के पास जाके उनसे पूछते थे कि क्या क्या उनकी तकलीफ है, तो उस मासेस को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यू गेस्ड इज राइट, मास लाइन कम्युनिकेशन बोला जाता है इसको। तो गांधी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज मास लाइन कम्युनिकेशन एज वेल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आई होप यू पिक द राइट आंसर एज वेल। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, modern mass communication has the characteristics of being, you have given five options और इसमें से आपको you have to pick the right three, right? तो जब भी मैंने हमेशा बोला है if you are going to attempt any question what you have to do when there are multiple options, जब यहाँ पे multiple options हो you have to look to the options first कि इसमें से सिर्फ तीन ही options ठीक हो सकते हैं, right? So you have to eliminate it, two options, not at least you have to eliminate two options. So modern mass communication has the characteristics of being. इसके 30 seconds I'll give you to pick the right answer, to pick the best answer according to you, and then I'll tell you the right answer. Okay. मॉडर्न मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करिए। सो आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, स्पोरैडिक। स्पोरैडिक का मतलब होता है इर्रेगुलर। अगर इसका लिटरल मीनिंग जाने तो इसको इर्रेगुलर या इंटरवल बेस्ड बोलते हैं, इसको स्पोरैडिक का मतलब होता है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, एज यू ऑलरेडी न्यू। बेस्ड ऑन अ शेड्यूल मतलब एक डेडलाइन दे रखी है, उसी के हिसाब से आपको कम्युनिकेशन करनी होती है। नॉट मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, नहीं। और डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ मीडिया, यस। मॉडर्न मास कम्युनिकेशन में अगर मेरे को सही ऑप्शन पिक करना है तो एक तो होगा कॉन्टिन्यूस, बिकॉज एज वी लिव इन मॉडर्न एरा, आपको पता है कम्युनिकेशन में कितने ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली वी आर बीइंग अपडेटेड। एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड देर इज समथिंग हैपनिंग अराउंड द ग्लोब एंड वी आर बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस होता है, डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ मीडिया भी है, और बेस्ड ऑन का स्केड्यूल भी है। सी लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ बुक लॉन्चिंग। तो जो बुक लॉन्चिंग होती है, दे आर गिवन अ टाइम फ्रेम दैट बाय दिस ईयर, बाय दिस टाइम यू हैव टू डू अ बुक लॉन्च। तो कॉन्टिन्यू उसमें कॉन्टिन्यूस नहीं, वो बेस्ड ऑन अ शेड्यूल है। तो इस टाइम लिमिट के अंदर आपको अपना बुक लॉन्च करना होता है। तो इसके जो राइट आंसर होंगे बी, सी एंड ई, ठीक है। तो ये ऑप्शन थ्री होगा क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, find out the sequence of elements of effective communication as listed by Cutlip et al. ठीक है, ये आपको सीक्वेंस बताना है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे आउट कि इसमें आपको पिक करना द राइट वन। सारे के सारे को यूज़ करना है, स्मार्टली यूज़ करना है। आई गिव यू 30 सेकेंड सो दैट यू कैन पिक द राइट आंसर। until the time I'll tell you about what this element of effective communication means, right? तो स्कॉट एम कटलिप ने ये 1970s में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के बारे में बताया था। एंड स्कॉट एंड एम कटलिप के साथ एलन भी थे, इन्होंने भी साथ में कंट्रीब्यूट करा था फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स के बारे में बताने के लिए। अब इसमें आई थिंक योर टाइम इज अप। तो अब सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जो एलिमेंट होता है दैट इज क्लाइमेट ऑफ बिलीव। आई टेल यू व्हाई। देखो, जब भी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, जब भी हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी, तो हमें पता आना होनी चाहिए कि कहाँ हो रही है, राइट? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट शुड बी डन इन ऑफिस प्रीमिसेस। ऑफिस के प्रीमिसेस में होनी चाहिए, देयर इज अ क्लाइमेट ऑफ बिलीफ। ओके, तो पहला ऑप्शन हमारा डी होगा। इससे राइट आंसर डी, ए, बी से आ जाएगा, बट आई टेल यू व्हाट अदर ऑप्शन मीन्स। पार्टिसिपेटरी कॉन्टेक्स्ट, जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यू डेफिनेटली नीड टू नो कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अगर आपको पता ही नहीं किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, देन यू विल डेफिनेटली यू कैन नॉट फिगर इट आउट कि हमें क्या बात करनी, क्या रेलेवेंट बात होगी और कैसे इफेक्टिवली हमें बात करनी है। ओके, पार्टिसिपेटरी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करी। उसके बाद एक प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड। सो व्हाइल यू आर इंडल्जिंग इन टू कम्युनिकेशन, देयर इज अ चांस दैट यू विल बी रिवॉर्डेड। अगर आपको बोला गया है कि दैट यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर सर्टेन आइडियाज दैट यू पुट इन, so definitely you will think about it, brainstorm it, and then you will give a definite idea, and that will lead into a effective communication. Okay, promise of reward के बाद होता है एक मैसेज क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। इफ़ आई एम टीचिंग यू देयर शुड बी क्लैरिटी कि मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, किस चीज़ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। तो वो बहुत एक क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी,
कंसिस्टेंसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये नहीं कि मैं उसके बोल दूंगा 1 मंथ, एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस year April, right? So I should be talking about the this current year and the next upcoming month, not the last year previous month. So एक consistency होनी चाहिए while if I am talking about something, so that will lead into effective communication. If I'm talking, if I'm taking you, if I'm telling you procedures, the right steps to get into the right direction, then there should be consistency, right? If I have tell you about a particular goal that I want that my team should achieve by next year, तो वो consistent रहना चाहिए, वो गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं होते रहने चाहिए, ओके? तो कंसिस्टेंसी लैक करेगा फिर वो, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ वर्बल डेटा? आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन से सोर्सेज हैं वर्बल डेटा के? आपको ऑप्शन दे रखे, यू हैव टू पिक द थ्री राइट ऑप्शंस इसमें से। सो आई गिव यू 30 सेकेंड फॉर दिस, so that you can, you know, guess from your end. As I said, you have to be an active participant. यहाँ पे आप, you don't expect to be a passive listener. That actually, harms the motive of this entire video or the lecture. Okay, okay, your time is up. हम बात कर रहे हैं वर्बल डेटा की, तो ट्रैफिक सिग्नल एक नॉन वर्बल डेटा है, तो दिस वोंट बी द योर राइट ऑप्शन। तो जिसमें भी ए है उसको तो हम क्रॉस कर देंगे सिंपली। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में यू आर आस्किंग अबाउट समथिंग, आप अभी इंटरव्यू में पूछ रहे हो, तो उनसे आप रिस्पॉन्सेज चाहते हो, तो वर्बली ओरली करेंगे कम्युनिकेट, तो दिस डज फॉर्म अ पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ वर्बल डेटा। उसके बाद नैरेटिव इंटरव्यूज के बारे में बात करते हैं, तो नैरेटिव इंटरव्यूज होते क्या है बेसिकली, if if there is an incident that has happened in your life and the interviewee asked you to narrate that, ठीक है? तो वो आपसे बोल देता है कि आप इसको नरेट कर दो, तो दैट इज योर नरेटिव इंटरव्यूज। तो उसके बाद हम बात करते हैं फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप भी हमारे सोर्सेज ऑफ वर्बल डेटा होता है। सो व्हाट कुड बी अ क्लोज एग्जांपल ऑफ फोकस ग्रुप? तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ डिबेट्स होती हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ डिबेट्स होती है, ठीक है? न्यूज़ डिबेट में होता क्या है, दे आस्क द एक्सपर्ट टू टेल व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन। कुछ भी करंट टॉपिक चल रहा है तो उसमें दे आस्क द एक्सपर्ट देयर ओपिनियंस। नॉर्मल लोकल पब्लिक से नहीं पूछ रहे होते, दे वांट टू नो द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट फोकस ग्रुप, फोकस इंडिविजुअल रादर देन टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ एवरीवन, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज एक नॉन वर्बल डेटा ही है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो बी सी डी, द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप एवरीवन गॉट दिस वन करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a student greet his teacher with good morning. Here the channel of communication is. I want each and every one of you to get this one right at least. Okay, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। Straight away आप you can pick the right option as well. So I'll give you 10 seconds for this because you don't need much time for this question, right? A student greets his teacher with good morning. Here the channel of communication is speech. बोल रहे हैं, राइट? ग्रीट करा है आपने अपने टीचर को गुड मॉर्निंग बोल के, तो यहाँ पे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? स्पीच होगा, राइट? अगर आपको चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के बारे में पूरी तरीके से पढ़ना है फ्रॉम स्क्रैच, सो व्हाट यू कैन डू, जो मैंने पहले भी बताया था, टैलेंट बेस्ड यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरी वीडियोस के प्लेलिस्ट देखो, वहां से यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिस्ट और मैच द फॉलोइंग काफ़ी आते हैं आपके पेपर में, एग्जामिनेशन में। सो आपको एक लिस्ट में दे रखा है टाइप्स ऑफ स्पीच एंड देन देयर इज लिस्ट टू देयर ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्टली विल टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीच। एक है आपका आफ्टर डिनर स्पीच, देन देयर इज एकेडमिक स्पीच, देन देयर इज मार्केटिंग स्पीच, देन देयर इज पॉलिटिकल स्पीच। उनके और कुछ ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, टू मोटिवेट और परसुएड, टू इम्प्रेस, टू अम्यूज नॉट नेसेसरीली इंफॉर्मेटिव, टू इन्फॉर्म, ठीक है? यू हैव टू पिक द राइट ऑप्शन एंड यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। तो आपको मैं 50 सेकेंड दे रहा हूँ फॉर दिस वन, थोड़ा टाइम स्पेंड करो और पिक द राइट ऑप्शन।
एंड ईच एंड एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो डेफिनेटली यू हैव टू पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं है कि मैंने तो पढ़ा नहीं है। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मेक अ गेस, जितना हो सकता है क्लोज गेस करने की कोई भी कोशिश करोगे, देन यू डेफिनेटली लर्न कि ये वाला गलत आंसर था मेरा गेस, तो व्हाट इज द राइट आंसर। वो एक क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए टू पिक द राइट आंसर। ओके, सो योर टाइम इज अप। हम सबसे पहले बात करते हैं आफ्टर डिनर स्पीच। तो आफ्टर डिनर स्पीच का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, तो वहाँ पे आफ्टर स्पीच दी जाती है, डिनर स्पीच, और उसको दे आर बेसिकली टू अम्यूज, फन जोक्स क्रैक करे जाते हैं, नॉट नेसेसरीली इंफॉर्मेटिव। कभी कभी हो सकती है इंफॉर्मेटिव है, बट दे आर जनरली नॉट नेसेसरीली इंफॉर्मेटिव। अकेडमिक स्पीच कौन सी स्पीच होती है, जो आपको इन्फॉर्म करे। मार्केटिंग स्पीच कौन सी होती है, जो आपको इम्प्रेस करे। मार्केटिंग जो आपकी स्पीच होगी वो एक सेल करना चाहता है, जिससे आप वो प्रोडक्ट को बाय करो। तो अगर वो आप इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, तो देन हाउ डू यू मेक दिस योर मार्केटिंग पिच अ सक्सेसफुल पिच और नॉट। पॉलिटिकल स्पीच जो होती है वो मोटिवेट करने के लिए होती है या परसुएट करने के लिए होती है। सो इफ आई हैव टू पिक द राइट आंसर, A3, B4, राइट, C2 and D1. Okay, option A is the right answer for this question. Okay, now the next question is efficacy of written communication depends upon। आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, यू हैव टू पिक द राइट वन। एफिकेसी का मतलब क्या होता है, लाइक एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, वी राइट इट एज एफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो किस पे डिपेंड करती है आपको, यू हैव टू पिक द राइट आंसर। ओके, 30 सेकेंड्स। थोड़ा इस पे आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी नेगेटिव वर्ड्स होंगे ना, वो कभी भी एफिशिएंट नहीं होंगे। तो ये एक ट्रिक है कि जब भी वी आर टॉकिंग अब एफिशिएंसी, तो जो भी नेगेटिव वर्ड्स होंगे ना, वो आपके कभी भी राइट आंसर होंगे नहीं। ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स नहीं होंगे हमेशा, आपके गलत ही होंगे वो आंसर। ओके, योर टाइम इज अप। तो सबसे पहला क्या है, लेंदी प्रेजेंटेशन। लेंदी प्रेजेंटेशन एक नेगेटिव वर्ड है। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें रिटन कम्युनिकेशन में, तो ये रॉन्ग आंसर होगा। एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, दिस इज द राइट थिंग। राइट, अगर आप बात करते हैं कि अगर कभी भी कोई ड्राफ्ट लिखा जाता है, सो देर इज अ स्कोप ऑफ एडिटिंग एवरी टाइम। वहाँ पे हमेशा एक स्कोप रह जाता है कि उसको ड्राफ्ट करा जाए। कुछ भी जो आपने राइटिंग करी है, दैट इज नॉट द फाइनल ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट में हमेशा कुछ ना कुछ एडिट करने के लिए स्पेस रहता है। ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, अब मुझे पता है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ब्रेविटी का मतलब ही नहीं पता होगा। इसका मतलब होता है एक्यूरेट और प्रिसाइज। एक्यूरेट और प्रिसाइज, ठीक है। ब्रेविटी इन सेंटेंसेस का मतलब क्या है, आप एक्यूरेट वर्ड्स का यूज करो, प्रिसाइज वर्ड्स का यूज करो इन सेंटेंसेस। तो दिस इज एन इफेक्टिव वे ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, देखो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का क्या मतलब है। लेट सपोज इफ आई एम राइटिंग एन आर्टिकल दैट इज मेंट फॉर ईच एज ग्रुप, लाइक सारी की सारी जो ईच एंड एवरी वन एज ग्रुप है, सबके लिए मेंट करता है। बट उस आर्टिकल में आई हैव यूज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स विच आर लाइकली यू नो शुड बी एड्रेस टू ओनली अडल्ट ओनली। तो वहाँ पे जो आपके टीनेजर्स हैं, उन पे एक बैड इन्फ्लुएंस आएगा रिगार्डिंग दोस वर्ड्स। सो यू कैन नॉट यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ऑलवेज, सो दैट वोंट बी एन इफेक्टिव वे ऑफ रिटिंग कम्युनिकेशन। इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स आपने तो डेफिनेशन से ही पता लगा लिया होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या है, बी सी ए नहीं, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, आपको आई होप समझ में भी आ गया होगा कि क्यों इसका आंसर बी सी है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, ऑल कम्युनिकेशन इज ए और एन प्रोसेस। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस है। तो आई गिव यू 30 seconds for this one as well, so that you can pick the right answer. And I hope that each and everyone who is watching this video is tallying their score side by side। तो आपको टैली भी करना है अपने स्कोर, जिससे टुवर्ड्स द एंड आई गेट टू नो आपको कितना सीखा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको साथ साथ करनी है। ठीक है, आपका टाइम हो चुका है। अगर हम बात करें स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल की, ऑल कम्युनिकेशन इज इन प्रोसेस, तो ये बोलता क्या है। पहली बात तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल में होता क्या है कि देर इज अ सिंगल लाइक वन वे कम्युनिकेशन, इसको हम बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, पहली बात तो इसमें क्या है, सेंडर जब भी रिसीवर को मैसेज भेज देता है, देन द कम्युनिकेशन इज डन।
बट जनरली जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, जब भी सेंडर मैसेज भेज रहे रिसीवर को, रिसीवर एक फीडबैक देता है, देन वी से दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डन। बट जब हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल की बात करते हैं, तो देर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, एंड इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, एक वन वे कम्युनिकेशन हो रही है इसमें, इसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं। और जो हमने फीडबैक वाली बात बताई, दैट इज योर नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस, एंड दैट इज हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट your normal communication processes. Okay, moving to the next question. Given below are two statements, or in the light of a statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Statement one क्या बोलती है? Mediated communication flourishes in a free and democratic environment. तो ये statement one है. Statement two क्या बोलती है? Power distortions always affect the flow of communication, whatever may be the political system. ठीक है, मीडिएटेड कम्युनिकेशन फ्लरिशेज इन अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, ये चीज़ बोली गई है। अब मैं आपको 30 सेकेंड देता हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, तब उसके बाद आई टेल यू द राइट आंसर। ओके, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दो स्टेटमेंट के बारे में बात करी गई है। अगर आप थोड़ा भी सोचोगे ना, यू कैन रीच टू द राइट आंसर। थोड़ा इसमें सोचना ज़रूरी होता है जब भी कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा होता है और आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है। ठीक है, अच्छा, योर टाइम इज अप। मीडिएटेड कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एक पार्टी है, एक ये मीडिएटर है और ये एक और पार्टी है। ये दोनों एग्रीव्ड पार्टी हैं एक दूसरे से। दो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, राइट, दे हैव देयर ओन डिफरेंसेस। तो अब इसकी वजह से देयर द कंपनी इज सफरिंग। तो यहाँ पे एक एचआर मैनेजर है, वो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं आपको मीडिएट करता हूँ बात, आपको मुझे ट्रस्ट करना है और इनको भी इनको ट्रस्ट करना है, राइट, दोनों डिपार्टमेंट को ट्रस्ट करना है टू द एचआर मैनेजर। तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन तभी फ्लरिश होगी जब वहाँ पे एक फ्री और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होगा, जब बी को लगेगा कि ए को बायस्ड नहीं है, मतलब एचआर मैनेजर ए को फेवर नहीं करेगा। एंड सिमिलरली ए भी, ये जो हमारी कम्युनिकेशन होगी मीडिएटेड, उसको तभी अच्छा एज इन पार्टिसिपेट करेगा जब उसे भी पता है कि बी को भी फेवर नहीं करा जाएगा। तो एक फ्री और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में मीडिएटेड कम्युनिकेशन हमेशा फ्लरिश करती है। तो स्टेटमेंट वन इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलती है कि पावर डिस्टॉर्शन ऑलवेज इफेक्ट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन वॉट एवर मे बी द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? लेट सपोज एक पार्टी में लीडर है ए, उसने बोला बी जो उनसे जूनियर है कि आप सी को ये इन्फॉर्म कर देना जो बी से भी जूनियर है कि वी आर टेकिंग दिस डिसीजन इन आर पार्टी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ए के पास अथॉरिटी है ओवर बी। अब बी को जो उन्होंने कम्युनिकेट करा, बी ने अपनी अथॉरिटी और ऐड करके सी के लिए वो जो कम्युनिकेशन जो थी इनिशियली, जो उनको मिलनी चाहिए थी डायरेक्शन, उसको चेंज कर दिया उन्होंने, वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करा और उस कम्युनिकेशन को चेंज कर दिया। तो पावर डिस्टॉर्शन ऑलवेज इफेक्ट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज ऑल्सो राइट, वॉट एवर मे बी द पोलिटिकल सिस्टम, इवन इफ देर इट इज डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, तब भी हम ये बोलते हैं कि पावर डिस्टॉर्शन हमेशा इफेक्ट करता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें भी दो स्टेटमेंट दे रखी है, यू हैव टू पिक द राइट आंसर। ठीक है, पहली बात अगर हम बात करें स्टेटमेंट वन में क्या बात करी गई है, इसमें बात करी है इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज इन्वॉल्व डिफरेंट डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर जर्नलाइजेशन। ओके, स्टेटमेंट टू क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ लीविंग आउट डिटेल्स एंड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द डिटेल लेफ्ट आउट इज नेसेसरी। अब आपके 30 सेकेंड शुरू होते हैं, एंड आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू पिक द राइट आंसर जो आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, राइट, सो योर टाइम इज अप। पहली बात हम बात करते हैं स्टेटमेंट वन। इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज इन्वॉल्व डिफरेंट डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर जर्नलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें संस्कृत, हिंदी एंड उर्दू, इन सब में, इन सारी लैंग्वेज में अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, काफ़ी वर्ड्स बहुत सिमिलर है, राइट, बिकॉज संस्कृत से हिंदू और उर्दू डिराइव करी गई हैं। तो देर इज
डिफरेंट डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर जर्नलाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं ए वर्ड संस्कृत से आया, ये वर्ड भी हम संस्कृत से आया, तो देर इज अ जर्नलाइजेशन दैट इज इन्वॉल्व। ठीक है, लैंग्वेज में होती है डिफरेंट डिग्री ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर जर्नलाइजेशन। तो स्टेटमेंट वन इज राइट। स्टेटमेंट टू जो बोलता है, ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्शन जो होता है, अगर आपने पैसेजेस पढ़े होंगे अपनी 10th क्लास में इंग्लिश में, तो पैसेजेस के बाद ना हमेशा जब भी चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म होने के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। तो उसमें सारी डिटेल्स नहीं होती, बिकॉज चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट एक समरी दे रखी है कि ये चैप्टर इस चीज़ के बारे में बात करता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ईच एंड एवरी डिटेल इज नॉट मेंशन। तो हाँ, एब्स्ट्रैक्शन इज डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस ऑफ लीविंग आउट डिटेल एंड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द डिटेल लेफ्ट आउट इज नेसेसरी। तो अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इफ यू वांट टू नो जो आपने कम्युनिकेट करा है टू द अदर पर्सन, दे हैव रेड इट वेल, दे हैव अंडरस्टूड इट वेल, तो आप एक बार उनको अब्स्ट्रैक्ट दिखा सकते हो। अब्स्ट्रैक्ट में अगर आप डिटेल्स मिस आउट कर दोगे और उनको बोलोगे आपको पॉइंट आउट करनी है कि क्या क्या डिटेल मिस आउट है, आपको पता लग जाएगा उन्होंने वो चीज़ सही से पढ़ी है नहीं पढ़ी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है फॉर दिस क्वेश्चन। वो स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। हु आर स्ट्रगलिंग इन प्रिपेयरिंग, कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है, कि कहाँ से पढ़े। लोगों के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डाउट ये होता है कि हम पढ़े कहाँ से, वीडियोस में पूरा पूरा सिलेबस कवर है या नहीं है, कहाँ से जाके पढ़े। तो उसके लिए भी वी आर प्रोवाइडिंग ई बुक ऑन कम्युनिकेशन दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। कोई चार्जेस नहीं है, देयर देयर नो हिडन चार्जेस, फ्री है बिल्कुल। कैसे करना है क्लेम, व्हाट यू हैव टू डू इज व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 9873907600 पे, दैट यू वांट टू क्लेम योर फ्री ई बुक ऑन कम्युनिकेशन। और इस ई बुक में आपका फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द स्क्रैच, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज हैज बीन कवर्ड। तो इसमें आपको कुछ मिस आउट नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़ लोगे। और इससे आपकी एनर्जी कितनी 10x 10x बूस्ट आएगा आपकी किसमें, प्रिपरेशन में। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई सेड कि आपको टुवर्ड्स द एंड भी रुक के ये देखना है कि कहाँ से आप इसे क्लेम कर सकते हो। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, 9873907600। ई बुक है, फ्री में क्लेम करो, खुद भी क्लेम करो, अपने दोस्तों को भी बताओ इसके बारे में, जिससे सबकी प्रिपरेशन इंप्रूव हो सके। एंड सो दैट कम्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आई नो, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो। तो लाइक करना वीडियो को, एज दिस वर्क्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस, राइट। अगर आप लाइक करोगे वीडियो को तो हमें भी लगता है कि आप भी रेसिप्रोकेट कर रहे हो इस एफर्ट्स को। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबा दोगे, सो वेन एवर आई कम अप विद अ वीडियो ऑन द नेक्स्ट यूनिट यू गेट नोटिफाइड फॉर इट। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मल्टीपल चैलेंजर्स होंगे एक कंटेंट में, एक वीडियो में, एक कमेंट सेक्शन में, देन आपको पता लगेगा ना कि रियल में कितना कंपटीशन है, राइट। सो यू वांट योर कॉम्पिटिंग फ्रेंड्स टू बी कॉम्पिटिंग हेयर एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। सो उससे मुझे याद आया, आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। ठीक है, अगर आपके 17 आंसर सही थे आउट ऑफ 20, देन आई थिंक यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। बट एनीथिंग लेस देन 17, दैट नीड्स इंट्रोस्पेक्शन, कि आपको ज़रूरत है कि आपका वीक एरिया कौन सा है, उस पे आपको एम्फसाइज करना है। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना मत भूलना। और एज आई सेड कि वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में और ऐड ऑन करना है, कि जैसे सर ने तो 20 क्वेश्चंस करा दिए बट मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो कहाँ से प्रैक्टिस करें। सो व्हाट यू कैन डू इज डाउनलोड द टैलेंट ब्लेजर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर से जाके टैलेंट ब्लेजर की ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट। तो बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं, आप उनमें जाके मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट दोगे, उससे क्या पता है, जो आपको टेस्ट करेगा, यू कैन टेस्ट द वॉटर्स कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। उससे तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ मैं राइट ट्रैक पे हूँ या नहीं हूँ। तो मॉक टेस्ट दो, जितने मॉक टेस्ट दोगे उससे आपकी अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगा, एंड दैट इज फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है, तो डाउनलोड कर लो। द लिंक फॉर द सेम विल बी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन में। तो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्ले स्टोर के पे जाके आपको टैलेंट ब्लेजर की ऐप डाउनलोड करनी है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। मॉक टेस्ट में ये भी है कि आपको ये सिंपल सिंपल सी ये बात नहीं है कि आपको राइट ऑप्शन दे रखा है कि गलत ऑप्शन क्या था, राइट ऑप्शन ये है, नहीं, आपको ये बताया है कि राइट ऑप्शन क्यों है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। सो दैट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके, ठीक है? सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ तो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।